Please take over, Dr. Lovely. You may start and invite. अ, कोमल मैम, प्लीज आप बच्चों से इंटरेक्ट करें और बच्चों को बताएं कि पीओपी मूवमेंट में क्या है और बच्चे क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। Okay, just a second. Hello, everyone. Hi, good morning. This is Komal from the Pop Movement, and I'm a research associate and youth mentor. So today we have this particular webinar on the International Youth Day. And since you all are the young people, you are the future for tomorrow. First of all, I would like to congratulate and wish you a very happy International Youth Day. And we at the Pop Movement, we are a youth organization. We work on empowering young people, motivating them, and inspiring them to take climate action. And it is, basically an individual action, which we call as youth-led climate action. So, giving you a brief about the POP movement. So, POP movement is basically an international organization which was organized and which was founded by late Dr. R.K. Pachauri, who was a Nobel Peace Prize winner, along with his son, Dr. Ash Pachauri, who is a behavioral scientist and a policy developer with the N number of UN-based organization. They sat together and they founded this organization, which we call as a POP movement. POP stands for Protect Our Planet, but to give the youth vibe, we call it a pop. So today at International Youth Day, we at the Pop Movement would welcome you on this particular platform and to this webinar to take youth-led climate action, to take the initiatives which are inspired by you and which could, which you could develop by support and the mentorship by the Pop Movement and help to mitigate the climate change. With this, I would give the floor to Ms. Mohini to take forward with the keynote address, and then we'll go ahead and speak more about the Youth Can Initiative, Youth-led climate action, POF festivals, and other activities which you can do and lead on your own. Thank you. Yes. Our aim here is to motivate young minds to take protective steps in protecting our environment by building their capacities, fostering innovation, and encouraging collaborative student-led projects that address these global challenges, as planting trees and use restrict the use of polythenes and promote the use of paper bags and some points or some suggestions we could take from our youngsters. And as we know, climate change is one of the greatest challenges of our time. Rising global temperatures, extreme weather events, loss of biodiversity, and threats to water and food security, and no longer distant possibilities. They are realities we face today. Protecting our environment requires not only policy action and technology, but also shift in awareness, lifestyle, and collective responsibility. So मैं कहना चाहूंगी कि आज के यूथ को प्रमोट करने से क्या है कि आगे जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको सेफ रखने के लिए स्टेप्स हमारे यूथ ही लेंगे, क्योंकि आगे सब कुछ उनको ही संभालना है। तो जब हमारे यंगस्टर्स इस चीज के लिए अवेयर होंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे पॉलिथीन के यूज पे हम रेस्ट्रिक्शन करें। हम सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल के करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल का रोल भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जब हम इंडिविजुअली एक एक करके अगर 10 लोग भी रेस्ट्रिक्शंस लेंगे कि हमें कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखना है, तो ये सब जो वर्क है ये हमारे आगे के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। कोमल मैम, यू हैव टू स्पीक फर्दर। Thank you, Ms. Mohini. Yes. So, before we move forward and talk about the Youth Can initiative and how you can lead your action, I would like to invite Sahil, who is a junior mentor at the Pop Movement, and he will, and he is a young member. He is the youngest member at the Pop Movement who is taking several initiatives and who is mentoring young people. So, I would request him to share his own climate story and how he brought initiative to the world to the pop movement. And recently, we have finished our summer mentorship program where he was the key element who has been leading n number of initiatives with the young people who have joined us. So would welcome Sahil to share his story with you all, inspire you, and to motivate you how you can be your own leader in the ground and be and
take actions to be for a sustainable tomorrow, to take actions to be a part of the youth can, because it is important that we take action now. Sahil, over to you, please. Thank you so much, Komal. And I think today, when we are celebrating International Youth Day, it is quite important to um, know like how a youth like me started the initiative from his childhood, and how I came here. So before going ahead, I can start. I can talk about in 2 minutes about my climate story, how I started, and how uh, it कैसे इसको हम आगे लेके गए. So I was just 5 year old when I went with my grandmother to plant a tree. So उस वक्त जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मुझे बोला कि uh, जो पेड़ होते हैं ना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं. तो मेरा उनसे सेकंड क्वेश्चन यही था कि uh, हम इसको क्यों प्लांट करें, जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी क्यों. तो उन्होंने बोला कि आज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो हमारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब समर्स में काफी गर्मी पड़ेगी तो उसके अंदर वो शेडोज को प्रोवाइड करवाएंगे. जब बर्ड्स होती हैं उनके लिए वो एक घर बनेगा. तो वहां से मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं मेरे लेवल पे कुछ करूं. तो उस टाइम से मैंने थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट करना शुरू किया, एंड हम लोग हर 1-2 महीने में 1 या 2 पेड़ लगाने जाया करते थे. बट सीरियसली व्हेन आई वाज माय 11 और 12 ईयर ओल्ड, जब मैं 11-12 साल का था, तब मैंने सीरियसली अपने जो क्लासमेट्स थे उनके साथ मिलकर हर संडे को एक इनिशिएटिव प्लान करना शुरू किया. एंड हम हर संडे को एक खुद के स्कूल में या स्कूल के आसपास कहीं पे एक पेड़ लगाना शुरू करते थे. एंड धीरे धीरे ये चीज चलती रही, एंड फिर मैं कॉलेज में गया, एंड कॉलेज में देयर वाज अ यूथ इको क्लब. सो इको क्लब का काम यही होता है कि वो कॉलेजेस के अंदर किस तरह से एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज प्रमोट कर सकते हैं. तो वहां पर मुझे एक पोजीशन मिली. उस पोजीशन की वजह से क्या हुआ कि मैंने काफी सारी अवेयरनेस ड्राइव्स एंड यूथ इनिशिएटिव्स, ट्री प्लांटेशंस, क्लीनेस ड्राइव्स, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ ट्री प्लांटेशन से क्लाइमेट चेंज सोल्व नहीं हो सकता. हमें लोगों को अलग अलग लेवल पर ट्रेन एंड एजुकेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये चीजें चलती गई, एंड मैंने आज तक लगभग खुद के लेवल पर 1000 से ज्यादा ट्रीज में लगा चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में एंड अलग अलग एरिया में. सो जितने भी यंग पीपल हैं आज इस सेमिनार के अंदर, तो उनको भी एक अपने अंदर एक, मुझे लगता है कि एनकरेजमेंट उनके अंदर होना चाहिए, मतलब उल्लास जिसको हम बोलते हैं, कि हमें हमारे नेचर के लिए कुछ करना है, हमें हमारी मदर अर्थ के लिए कुछ करना है. बिकॉज अगर हम आज एक स्टेप आगे लेंगे तो जितने भी जो सोसाइटी होगी हमारी पूरी, वो भी ये सोचेगी कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद हिम, हाउ वी कैन गो फर्दर विद हिम. ये कुछ ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम आज खुद के लेवल पे एक इनिशिएटिव हमें लेना बहुत जरूरी है. अगर हम सोचेंगे कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं एक रैपर थ्रो कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा. बट सीरियसली हर एक चीज, हर एक सिंगल एक्शन से इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हम आज अपने घर पर वाटर को, पानी को बचाएंगे, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा. मान लीजिए कि हमने आज 1 ग्लास ऑफ वाटर सेव किया, तो हम एक मंथ के अंदर 30 ग्लास ऑफ वाटर सेव कर रहे हैं, सिंगल पर्सन. एंड हम अपनी फैमिली से भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव है पॉप का, पॉप मूवमेंट का, जो है यूथ कैन इनिशिएटिव. यूथ कैन इनिशिएटिव के अंदर क्या है, काफी सारे ना एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज एंड माइनर एक्टिविटीज. जैसे कि अगर हम अपने ग्रुप के साथ में कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आज हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोई मैराथन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, है ना. उस मैराथन के अंदर हमने क्या किया, हमने कुछ सस्टेनेबल थीम चूज कर ली, या हमने उस मैराथन के अंदर मान लीजिए कि प्लास्टिक वाटर बोतल की जगह हमने क्या किया, वहां पे जो हमारा पानी का जो एक कैंपर आता है, हमने वो वहां पे रख दिया. अब उससे क्या होगा, मान लीजिए कि एक मैराथन के अंदर थाउजेंड ऑफ वाटर बोतल यूज होनी थी, अब उसकी जगह क्या हुआ, हमने वाटर कैंपर यूज किया या वाटर कूलर यूज किया. हमने क्या किया, 1000 जो बोटल्स थी उसका जो प्लास्टिक था उसको बचाया. हो गया ना एक इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट लेवल पे. तो ऐसे ही काफी इनिशिएटिव्स है. ओके, मैराथन करवा, अगर आप मैराथन अगर आप अच्छा मैराथन करते हैं तो आप वैसा कुछ कीजिए. आप कॉन्सर्ट गाना अच्छा गाते हैं तो आप इस तरीके के गाने गाइए कि यूथ इम्प्रेस हो. एंड आजकल तो वैसे भी बीट सॉन्ग्स का एंड यू नो बड़ा उनका जज्बा है, तो गाइए प्लीज क्लाइमेट चेंज के ऊपर. उसके बाद में अगर हम अपने कॉलेज के अंदर, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी का ना इनिशिएटिव लीजिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो पेपर यूज हो गया उस पेपर को हम किस तरह रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अगर आप लोग स्टेप लेंगे ना तो ये पता भी नहीं लगेगा आपको कि एक बड़ा मूवमेंट कब बन जाएगा। उसके बाद में अब हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने घर पे हैं, हमारे घर पे लाइट्स ऑन है, तो वो लाइट्स अब यूज में नहीं है, तो लाइट्स का स्विच हम तो बंद कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हर कोई इतना तो काम कर ही सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में जैसे वेस्ट आता है तो हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं ना, प्लास्टिक अलग कर सकते हैं, एंड जो किचन वेस्ट है उसको अलग कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट किचन वेस्ट सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, इतना तो हम काम कर ही सकते हैं। तो पॉप मूवमेंट के अंदर जो हमारा जो पूरा यूथ का इनिशिएटिव है ये आपको यही बताता है कि आप क्या क्या इनिशिएटिव एक इंस्टीट्यूट लेवल पे ले सकते हो, क्या क्या इनिशिएटिव आप खुद के पर्सनल लेवल पे ले सकते हो। एंड सीरियसली मैं बताऊंगा कि जब मैं यूथ कैन इनिशिएटिव का पार्ट बना तो मैंने जो बहुत चीजें जैसे कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो पहले नहीं करते थे, मैंने उन चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। अब मैं आज उससे कमा भी रहा हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। अब हमारे घर में क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, हम क्या करते हैं उसको ना कूड़े में डाल देते हैं। अब पर मैं नहीं डालता, मैं उसको अलग से सेग्रीगेट कर लेता हूँ एंड उसको रिसाइकल कर देता हूँ, तो आ गई ना मनी। भले ही उस मनी से कुछ ना इतना बड़ा होता हो पर मेरे पास मनी तो आ रही है। एंड मेरे पास काफी सारे स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, आई हैव एडोप्टेड ऑलमोस्ट 10 स्ट्रीट डॉग्स। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं रिसाइकल करता हूँ वेस्ट एटलीस्ट उनका आधे दिन का तो काम हो ही जाता है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे इनिशिएटिव करते हो एंड कैसे आप खुद की लाइफ को हैप्पी बनाते हो। एंड मुझे लगता है कि आप सभी लोग यूथ कैन इनिशिएटिव का पार्ट बनिए एंड अपने लेवल पर एक छोटे छोटे इनिशिएटिव लीजिए। बाकी हम लोग तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू कोमल। Thank you, Sahil. And as you said that, as part of youth can whatever you like music, dance, any form of art you can do. There's a very small video for you all, which I'm going to play, which definitely will inspire you. Give me a moment. I'll just play that video. की सोच क्या बेमौसम से हर एक बात है, फटता है आसमान हो धूल हो सब कुछ उड़ा, फटता है आसमान हो धूल हो सब कुछ उड़ा, जाने किसने काटी है। पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित सोचे संसार सोचे दूषित मित्र बदल मौसम भी मतलब बदल रहा ना जाने सूत्रे कम मतलब बनो पर कटाई धरा पर बार बेकार सोच भी नकाब संसार बे मौसम सुख बे वक्तुला दृष्टि कब सोना दुराचारी दूरदृष्टि दृष्टि समाप्त feeling global warming youth can understand its global warming firing touch पर जुड़े तुम virus transfer complete understand the fourth future of दृष्टि की जनता great climate करना व्यक्त बनता
समता एक काल भले कोई सोई जीवन फल जैसा कोई हर कोई नहीं बस कुछ खासा चाहिए संसार बारे सोच वही बहुत चाहिए क्रिकेटर बेहतर बहुत बने देश में पर्यावरण देश पहले तरीके से जीत ले जंग अनसुनी पर जारी करनी पहले और किसी तरह से तड़पन अब पहले पहले कब आप करोड़ में मर जाएंगे आसमान सम्मान प्रगति का कम बदलो विधान सम्मान कर संतुलन
Yeah, so this was one of the initiative where we inspire young people to speak about climate change, but it was not something that you have to go out and conduct an activity. It was something that you feel yourself like you are a nature. Some became birds, some became mountains, some became hills, some became animals, and they perform based on what the nature is feeling about climate change. So this was one of the example of the youth can, and you are not limited to these form of art. It is up to you, up to your creation. How do you want to come up with this particular initiative, what you want to create, and how do you want to mitigate the climate change? So with this note, we complete the keynote address, and I would like to request Dr. Lovely and Ms. Mohini to take the floor and start with the panel discussion. Thank you. So I'll start again. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, everyone. On this International Youth Day, we gather not just to celebrate the energy and potential of young people, but to recognize the urgent role we play in shaping a sustainable future. This year's theme, Youth-led Climate Action, Innovation, Awareness and Impact, is more than just a slogan. It's a call to action. Climate change is not a distant warning. It is here and now. We see it in the record-breaking heat waves, the devastating floods, the melting glaciers, and the loss of biodiversity. Scientists have been sounding the alarm for decades, but the pace of action has been far too slow. Now, our generation is stepping forward because the future we are fighting for is the one we will live in. We, the youth, have something unique, the ability to think differently, act quickly, and inspire globally. Innovation is our tool, from developing eco-friendly technologies to reimagining sustainable agriculture. Awareness is our power. Using social media, art, and education to spark conversation that reach millions and impact our goal, turning ideas into measurable change that protects our planet. But climate action is not just about grand policies or big projects. It begins with personal responsibility. Every reusable bag, every tree planted, every conscious choice to conserve energy. These actions may seem small, but when multiplied by millions, they create a movement. As young people, we cannot wait for someone else to fix the things. We must be the voice, the hands, and the heart of the climate movement. Let us lead with courage, with creativity, and with compassion for all life on Earth. In the words of Bangari Maathai, the Nobel Peace Prize winner and environmentalist, it's the little things citizens do. That's what will make the difference. My little thing is planting trees. So let us ask ourselves, what will our little thing be? Because together, our small steps can become a giant leap for our planet. Thank you. Jai Hind. Okay, I would like to invite any other student for his valuable suggestions about environment safety. All the youths are energetic और बहुत सारे speech आप सुन चुके हो. I think इतना aware तो कर ही चुके हैं कि 12th अगस्त को every year हम International Youth Day celebrate करते हैं. I welcome Anshika for her valuable views about environment. Yes, over to you. जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ अंशिका. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है. क्लाइमेट चेंज बेसिकली हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन्हीं की वजह से हो रहा है. जो हम सारे नेचर के रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है और सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे हमारा नेचर अनसीजनेबल तरीके से चेंज हो रहा है. टेम्परेचर राइज हो रहा है. जैसे कि अभी आपने देखा मई में कितनी ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है. और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अभी तो क्लाइमेट ज्यादा ही चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से. अगर देखा जाए पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है. ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. अभी आपने सुना होगा न्यूज में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ कितनी ज्यादा बाढ़ आई थी. राजस्थान में सूखा हो रखा है. ये सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि हम पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, और जो हम कार जो चलाते हैं जिससे कार्बन पोल्यूशन होता है उसका कम इस्तेमाल करें. रोडवेज का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि पर्सनल जो हमारे, जैसे हम किसी वर्क पे जा रहे हैं तो अपनी पर्सनल व्हीकल से ना जाके हम रोडवेज को ज्यादा प्रेफर करें, जिससे जो कार्बन पोल्यूशन है वो कम हो. और क्या कह सकते हैं, पेड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पेड़. हम जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा क्लाइमेट के लिए. उससे हमारा सोइल इरोजन बचेगा, हमारा क्लाइमेट, तो फैन लगा दो, ऊपर फैन लगवाइए, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा. बस यही कहना चाहिए आपने में कि जितने हम अपने क्लाइमेट को ध्यान देंगे उतना ही ठीक रहेगा. एक कहावत है,
पृथ्वी इंसानों के बिना रह सकती है, लेकिन इंसान पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। अगर पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, अगर पृथ्वी इंसानों के रहने लायक ही नहीं बची तो वो रहेंगे कहाँ? तो इससे अच्छा है कि हम पृथ्वी को अभी से बचाना स्टार्ट करें ताकि इंसान इस पृथ्वी पर रह सके। थैंक यू। कोमल मैम, हेलो। Yeah, कोमल मैम, thank you. audible? We have Pranav, Please. who has recently joined us as part of our Youth Can initiative and as a junior mentor at the Pop Movement. He has also, led some different workshops on disaster management. I would like to request him to share his inspirational story with us and inspire the students, to take climate action as part of the initiative. Pranav? Thank you so much, Komal, for calling me out to share my story. Hello, everyone. Hello, youths, and wish you a very happy International Youth Day. Talking to my story and how I delved into the climate action, it belongs from a youth climate conclave which I attended in 2023. Previously, I was not into that environment action or climate action. But जब वो मैंने यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव अटेंड किया तो मुझे फर्स्ट टाइम वहीं से पता चला अबाउट द क्लाइमेट चेंज. आई वाज नॉट previously into the climate change. I was into climate as a geography background, but not into the climate change. And then I came about कि climate change हो रहा है, how it can affect our lives, how it can relate it to our health. फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया my life towards the path on the climate action. And I joined various types of organizations. मैंने उसमें वर्क करना शुरू किया एंड एट लास्ट आई वाज इनटू द डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. और मैंने ये फाइनली फाउंड कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट लीड्स टू सम पोटेंशियल हैजार्ड्स. आज हमारे अलग अलग तरह के हैजार्ड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. दैट इज साइक्लोन इज प्रीटी मच फ्रीक्वेंट. और जैसे अभी लास्ट स्पीच में आई एम लिसनिंग टू दैट particular youth, she mentioned about current Uttarakhand floods and all. So glacial burst, cloud burst, there are a lot types of hazards जो disaster लेकर आ रहे हैं, लोगों की life जा रही है, and of course health पे बहुत effect पड़ रहा है. और also wanna say कि जो climate change, it's not related to only one discipline. ये एक multidisciplinary approach है जो सारे disciplines को combine लेके चलती है, whether it's life science, whether it's geography, whether it's pol science, everything. We have pol science में we talk about climate justice, geography में we talk about the mechanism, and economics में we talk about climate finance. So it's a multidisciplinary approach, and I say कि कोई भी youth कभी ये ना सोचे कि I'm into this discipline and how I can go into the climate action or environment action. This is open for everyone. और आप अपना हर एक डिसिप्लिन से क्लाइमेट एक्शन में सहयोग दे सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव यूथ कैन, फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, फ्रॉम एनी फील्ड, यूथ कैन लेड एन इम्पैक्ट. एंड जिससे हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हम उसको रोक सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स टेक स्मॉल स्टेप्स ऑन योर साइड. इलेक्ट्रिसिटी को सेव कीजिए, अपना fuel को सेव कीजिए, choose public transportation, of course the locally based food, and reduce your non-veg consumption. So there's a lot of steps you can take at your individual level for this youth can. And all the best for further activities in the climate action and all. That's it from my side. Thank you. Thank you, Pranav. I think we have Miss Gayatri Balian from Subhati University. She also wanted to share her views on this area. Gayatri, please go ahead. Thank you, ma'am. Jai Hind, everyone. So as we are here as a part of the Youth Can program, and here we are discussing how can we save our climate, save our environment. But I think like we have been studying these things from class 6th, and we are all very aware of everything happening around us. It's not like that we are dealing it for the first time. But do we think like that choosing a day for these things is enough? Like we are sitting here finding ways and telling everyone about our views to save the environment, but will we really remember it by next week? Like we will use the same things, like can cokes, bottles, single-use plastic, and I know we will not think for once like what we are doing. So I think that these things should be started from ourselves first. We should be very aware of what we are using, how will harm our environment. And most importantly, I've seen that I live away from my home,
and I have to buy everything from market. Like there's nothing I have like from home. Like in home we have many things to store. So I think like the thing we buy, the bottles or the containers, so we should not throw them. At least we can use them to store our things. That can even help us to reduce the wastage. And additionally, it can help us store things. But for me, the main concern is that we should not forget what we have discussed today. We should implement it taking it very seriously. Otherwise, there is no benefit of doing all these webinars. I'm very much educated to aware of these things. Thank you. Thank you, Ms. Gayatri. And that's a very strong point that we have been learning about environment and we have been, discussing about climate change in our regular lives and from standard 6 to, to the end of our age. But what exactly we are doing for climate change is a question. And sitting in the room and just talking about it doesn't, come up with a solution. We have to work towards it. And that's the deal. When you all go out from this room, and when you think about it, what you all can bring on the table, what all you want to do for your environment, for your mother earth, and what steps do you want to take, doesn't matter in which field you belong to, but what actions you would take, that would count. So thank you Gayatri for saying that. And we have one last story which is from Mr. Manish Gupta. He has been associated with this environment and with the climate change and public health for so many years, I think more than a decade. And he has something very inspirational to share with you all. And with that, after the story, will again, request you to take some actions on the ground as part of YouthCan, and we'll close for today. Mr. Manish, can you please come and share your story, please? Thank you, Komal, and thank you, everyone. Good morning, good evening, जहाँ से भी आप लोग हैं। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं पिछले कई सालों से पॉप मूवमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्वायरमेंट अपने मदर अर्थ के लिए काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ना लेके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स अगर भी लेते हैं तो हम अपने मदर अर्थ के लिए बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने रूम से जब निकलते हैं तो अपने रूम की स्विच ऑफ करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। मुझे नहीं पता अपनी एरिया में लोग कितने लोग बहते हुए पानी के नल को बंद करते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें, इस छोटे छोटे चीजें अगर हम लोग ध्यान देने लगे तो हम काफी हेल्प कर सकते हैं। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स ही एक दिन बड़े स्टेप्स बनते हैं और हमें हमेशा अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी चीज हम अगर स्टार्ट करते हैं, अगर मुझे कोई एक बदलाव लाना है सोसाइटी में, घर में, पड़ोस में, तो सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग एग्री करते होंगे, क्योंकि जब आप अपने घर में वो चीज स्टार्ट करेंगे कि आप रूम से निकले, आपने लाइट बंद कर दी, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, आप साइकिल यूज कर सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं। लोग जरा जरा सी दूरी के लिए अपनी बाइक्स यूज करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, सब कहते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं पानी नहीं है। फ्यूचर में कई सारे इंडिया में स्टेट्स हैं जो पानी अभी जीरो हो गया, जहाँ पे पानी नहीं है। बंगलौर जैसी सिटी में पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। तो हम बोलते हैं, हम समस्या को समझते भी हैं, लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की उनके कारण क्या है? हमने कभी बैठ के सोचा या कभी अपने दोस्तों से डिस्कस किया, कभी अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस किया? मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा एक टास्क दूंगा जो आप लोग अपने घर में कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के कर सकते हैं। कभी भी कोई भी समस्या आपको लगती है कि वाटर से रिलेटेड समस्या है, एयर पोल्यूशन है या प्लास्टिक है, तो सबसे मेन जो चीजें हैं उनको आप कभी भी आप घर जाइए। आज सभी लोग एक छोटा सा टास्क करेंगे। आप लोग घर जाइए, एक कागज लो, एक पेन लो, उस पर एक समस्या लिखो कि समस्या क्या है। आपको लगता है कि मेरी एरिया में पानी की समस्या है, तो आप वहां पे सर्कल में पानी को रखिए और फिर उस समस्या के कारण ढूंढिए कि क्या क्या कारण है, एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण है, हम क्या कर सकते हैं। उस समस्या के कारण सबसे पहले आप ढूंढिए और उस कारण के समाधान ढूंढना स्टार्ट करिए। कि जैसे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, कि हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बोल सकते हैं कि हम गाड़ी अगर कभी भी घर से निकलते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करें, शेयरिंग कर लें, या पानी की कोई समस्या है तो हम कैसे किस तरीके से उसको
सेव कर सकते हैं, किस तरीके से फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। तो वही चीजों को आप सबसे पहले अपने साथ स्टार्ट करिए। लाइक आप घर में जाइए, एक पेपर पे समस्या लिखिए कि मेरी समस्या ये है। कोई भी समस्या हो सकती है, चाहे अपने हेल्थ से, चाहे अपने एनवायरमेंट से। आप उसको लिखिए, आप उसके समस्या के कारण ढूंढिए, आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी फैमिली से, कारण ढूंढिए और फिर उनके समाधान पे आप काम करें। 2 लोगों को साथ में, 3 लोगों को साथ में, हर बंदे के साथ आज कम से कम 4 से 5 लोग उनके एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं। आप छोटे से स्टेप्स मुझे लगता है लेना स्टार्ट करिए। हम जो ऑफिस में बैठे हैं, जो लोग स्कूल्स में बैठे हैं, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आओगे तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। आप छोटा सा छोटा, जितना छोटा आप काम कर सकते हैं करिए। बाजार जाते हैं, अपने घर से बैग लेके जाइए। पॉलीथीन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। सबके घरों में 10, 5, 20 पॉलीथीन आती हैं। कितना आप लोगों ने कभी सोचा कि इसका हम क्या करेंगे? अगर आप वही छोटे छोटे बैग्स आप अपने साथ लेके जाइए तो आप बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Manish. And with this, I would, like to end and want you all to conduct a few activities during an entire week as part of the International Youth Day. And the pop movement will share your activities and your climate stories on the ground on their platform. And, we'll try to have your stories, to take forward to inspire others. So please go ahead, take action, share your stories, do something for the planet, and lead with impact. Thank you so much, Dr. Lovely. This is from our end. If you want to say the ending words. Thank you, ma'am. Thank you, Komal ma'am. Thank you for the initiative. You make the students aware about the environment and how through small steps we would save our environment for the future, for our future generations. Thank you to all. Thank you, Ms. Mohini. So we will be looking to receive the climate stories and climate activities from the students during the entire week. And the selected 15 stories will be posted on the platform internationally. In the written mode, ma'am. Pardon me? Ma'am, you need the stories in written. No. It could be in any form. You can video recording. Okay, I think Sahil, would you like to explain how they can, share their climate story? And you can also give an example about maybe Abhijit, who did his climate story for books, Mr. Digambar, who led with the very young group. I think Sahil will tell you how to, share the climate stories, and then students can create their own innovation. There are no boundaries to stop students. They have whatever, where we stop, students start thinking. So I would say that their innovation is important, but Sahil would give an example how they can share their stories. Sure, ma'am. Thank you very much. Go ahead, Sahil. Thank you so much, Komal. So how to write a climate story? It is very interesting to there is nothing a big deal. आपको वही लिखना है जो आपने किया। जैसे कि अगर आप एक बुक डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक बुक डोनेशन ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि आपके उसकी बुक डोनेशन ड्राइव करवाने के पीछे आपका मोटिव क्या था, किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि आप वो बुक डोनेशन ड्राइव करे, एंड जब आपने वो बुक डोनेशन ड्राइव की तो आपको कैसा लगा, एंड उसके बाद में क्या आपकी फीलिंग रही, एंड जस्ट लाइक दैट। अगर आप मान लीजिए क्लीनिनेस ड्राइव करवा रहे हैं, है ना, तो आपके मन में क्या एक एनकरेजमेंट था जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे क्लीनेस ड्राइव करवानी चाहिए। जब आपने उस इनिशिएटिव के बारे में सोचा, एंड उसके बाद में आपने जब उसको इम्प्लीमेंट करने का कैसे सोचा, उसके बाद में जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपके मन में क्या एक सेटिस्फेक्शन आई तो आपको कैसा लगा। तो जस्ट आपको यही एक क्लाइमेट स्टोरी में बताना है। एंड सबसे बेस्ट क्लाइमेट स्टोरी का जो वर्जन होता है वो होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप एक वीडियो बना के अपने खुद से बोल के अगर आप बताएंगे कि हाँ मैंने ये क्लाइमेट स्टोरी किया एंड ये स्टेप मैंने फॉलो किए, ये उसके आउटकम आए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड सेकंड थिंग, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी में अपनी क्लाइमेट स्टोरी बताएं तो आप बता सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो आप उसमें भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप उसमें भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट आपको अपनी क्लाइमेट स्टोरी बतानी है ताकि आपकी स्टोरी सुनकर भी और यूथ इंस्पायर हो
एंड वो भी अपने लेवल पर कुछ एक्शंस ले। एंड आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो भी आप अपने स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में जैसे कि मान लीजिए कोई कैमरा से एंड रिलेटेड कोई सोसाइटी है, जो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई सोसाइटी है, तो वो भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। एंड अगर कुछ भी नहीं है तो अपने फोन का एक सेल्फी कैमरा ओपन करिए, उसको रखिए एंड उसके सामने खड़े होके बता दीजिए कि भाई ये स्टेप था, मैंने ये इनिशिएटिव था, मैंने ऐसे 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 किया। जस्ट एक 60 सेकंड की वीडियो बनानी है, 50 से 60 सेकंड भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव दिया। एंड द यूथ विच इज स्टडिंग इन योर कॉलेज, एंड आई थिंक उनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज आई थिंक एज अ यूथ, मैं भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, एंड मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर हम जिस लेवल का स्किल सीख सकते हैं ना, वो हम कहीं नहीं सीख सकते। एंड यू विल ऑल डू बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you for your guidelines. I think we should end here. You all are very fed up. Thank you for the guidelines, sir. Students will take your guidelines for further recordings and the storytellings and the story writing. Thank you, Komal ma'am. Thank you. Thank Thank you, you. everyone. Happy International Youth Day again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Bye. ग्रुप फोटो ले सकते हैं कोमल? Yeah, I think if everyone can switch on their cameras, we can take a group photo. सो मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 पे हम फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है? तो Okay. Smile, everyone. 1 2 and 3. Done, sir. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Thank you to all the students and dignitaries and the speakers. Thank you. Bye-bye. Bye.